अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 2 वीक से हमारा रोज़े का टॉपिक चल रहा है। इंशाल्लाह ताला आज भी हमारा टॉपिक सेम रहेगा, रोज़ा, जिसका इंशाल्लाह पार्ट 3 हम मुकम्मल करेंगे। जिसके लिए मैं दावत देती हूँ सिस्टर फातिमा अली जैदी को कि वो आएँ और अपने उन्वान पर खिताब फरमाएँ। الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، میری عزیز ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے درس کا وہی عنوان رہے گا جو ہم پچھلے 2 قسطوں میں پڑھے تھے، روزے کے متعلق، ارکان اسلام کے متعلق جو ہم پڑھ رہے تھے اسی سے ہی رہیں گا انشاءاللہ۔ 2 قسط میں ہم روزے کے متعلق ہی پڑھے تھے، انشاءاللہ اس کے آگے کے مسائل ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے لاسٹ ہم جو پچھلی قسط میں جو ہم پڑھے تھے وہ کام جو روزے کی حالت میں جائز ہے، یعنی کہ روزہ اس سے مکروہ نہیں ہوتا، وہ پڑھے تھے۔ انشاءاللہ ہم وہ امور یعنی کہ وہ کام کریں گے جو روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے، یعنی کہ ہم یہ کام روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے۔ تو احادیث کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ دیکھیے روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے کہ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ ناجائز کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی حاجت نہیں کہ وہ روزہ یعنی کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی کہ اس کا روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا کیا ہے وہ چھوڑ دے، اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اب جب ہم ایسے کام کر رہے ہیں، یعنی کہ جب ہم غیبت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں یا برائی کے کام کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری زبان کو لگام لگانا ہوگا، یعنی کہ ہماری زبان کو قابو میں رکھنا ہے کہ ہماری زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہم اپنے آپ کے روزے کے ساتھ ساتھ ہماری زبان کا بھی روزہ رکھیں، یعنی کہ ہم اپنے الفاظ کا بھی احتیاط کریں کہ ہماری بات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہم اتنے بڑے بڑے عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تراویح اور قرآن کی تلاوت کرتے، بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کرتے کہ روزے کی وجہ سے، بھوکا رہنے کی وجہ سے، چڑچڑاپن کی وجہ سے کسی کو ہم گالی دے دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خالی بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ تو یہ ناجائز کام ہے روزے کے حالات میں۔ آپ کا روزہ یعنی کہ آپ کا بھوکا رہنا اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ چیز کو قبول نہیں کریں گے۔ تو آپ کیا کریں، یہ تمام کام چھوڑ دیں اور صرف اللہ کے لیے روزہ رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش باتیں نہ کرے، بیہودہ پن نہ دکھائے۔ اگر کوئی دوسرا شخص روزے دار سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑا کرے تو روزے دار یعنی کہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی کہ میں تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں گا۔ ہم ان کو فوری یہ بات کہہ دینا ہے۔ اگر کوئی ہم سے لڑائی جھگڑا کرنے ہے یا ہم سے بحث کرنے ہے تو ہم ان کو کیا کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، میں آپ کی کوئی بات کا جواب دینے والا نہیں ہوں۔ تو ہم ان سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، کیونکہ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی یعنی کہ روزہ جو ڈھال ہے، اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ ہر فحش باتوں سے رکنا ہے، ہر فحش باتوں سے رکنا ہے۔ تو روزے کو ہمارا خالص بنانا ہے، اچھے طریقے سے بنانا ہے، تو ان تمام باتوں سے پرہیز کرنا ہے۔ روزے کی حالت میں بےہودہ اور فحش اور جہالت کی کام کرنا اور گفتگو کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اور ہم ان کو جب یعنی کہ اگر ہم سے کوئی لڑائی جھگڑا یا بات کرنے آئے، یعنی کہ لڑائی جھگڑا کرنے آئے، گالی گلوچ کرنے آئے، تو ہم ان کو کیا کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں تمہارا جواب نہیں دوں گا۔
अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजे की हालत में किसी को गाली ना दो। अगर कोई गाली दे तो उसे कह दे कि मैं रोजे से हूं, और खड़े हो जाए तो बैठ जाओ। अगर वो इंसान ठहरा हुआ है तो क्या करना चाहिए? रोजे की हालत में बैठ जाना चाहिए, यानी कि हमारी जो हालत है इसको तब्दील करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब इंसान गुस्से में है तो जाहिर सी बात है, किसी को जब अगर हम पे कोई गाली गलौज करे या हमसे बात करे, लड़ाई झगड़ा करे, तो हम खामोश नहीं बैठते, उनको जवाब देते हैं। तो हम क्या करें, हमारी जगह को तब्दील कर ले, यानी कि जो जगह पे शयातीन होते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि हम लड़े, हम जवाब दे, गाली गलौज करें, उससे बचने के लिए वो जगह को तब्दील कर लेना चाहिए। अब देखिए, हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजे की हालत में बोसा लेते हैं, यानी कि अल्लाह के रसूल हजरत आयशा बताती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में बोसा लेते हैं, और और सबसे ज्यादा यानी कि अपने नफ्स को काबू में रखते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर ये बताए कि अपने नफ्स को काबू में रखना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरी बात जो बताई गई, रोजे की हालत में कुल्ली करते वक्त ये चीज का ख्याल रखना चाहिए कि नाक में हमारे, यानी कि जो हम पानी लेते हैं, हलक तक ना जाए, यानी कि हलक तक जब चले जाए, यानी कि इस चीज का हर किसी को कच्चा रहता है कि रोजा टूटता है या नहीं टूटता है। तो हदीस सुनेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि उनसे सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह, वजू के बारे में मुझे बताइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वजू पूरा करो, उंगलियों के दरमियान खलल करो, और नम और नाक में अच्छी तरह पानी डालो। लेकिन अगर रोजा हो तो ऐसा ना करें, यानी कि जब हम अच्छी तरीके से जब नाक साफ करते हैं, कुल्ली करते हैं, और नाक के जरिए से जब हमारे हलक तक पानी पहुंचता है, तो रोजा उससे थोड़ा मकरूह हो जाता है। तो लिहाजा हम इन तमाम बातों का लिहाज रखना चाहिए कि नहीं, हमारी कलल करना है, लेकिन हमारा पानी, यानी कि नाक में जब हम पानी डालते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रोजे की हालत में जब हम रोजा नहीं रहते हैं तो अच्छी तरीके से नाक साफ करना है और नाक में पानी डालना है। तो ये काम रोजे की हालत में नहीं करना है। अब हम वो पढ़ेंगे रोजा फासिद करने या तोड़ने वाले काम, यानी कि किन किन चीजों से रोजा टूटता है और फासिद हो जाता है, यानी कि जब भी रोजा टूटता है और इस पर कफारा भी लाजिम होता है, और इसी तरीके से कज़ा भी वाजिब हो जाती है। तो देखिए, रोजे के दौरान जिमात करने से रोजा बातिल हो जाता है, इस पर कफारा भी है और कज़ा भी है। रोजे का कफारा मैं आपको पहले, यानी कि पिछली किस्त में आपको मैं बता चुकी हूँ कि उसका कफारा एक गुलाम आजाद करना है। अगर किसी के पास इस्तिताअत ना हो कि वो एक गुलाम आजाद ना कर सके, तो 2 माह के मुसलसल रोजे रखना है, लगातार। अगर वो दरमियान में एक रोजा भी छूट जाए तो उसको गिनती फिर से करना होगा, यानी कि 2 माह के लगातार। अगर किसी इंसान के पास गुलाम आजाद करने के अलावा 2 माह के रोजा रहने, यानी कि मुसलसल रोजा रहने की इस्तिताअत ना रखता हो, तो 60 मिस्किनों को, यानी कि 60 मोहताजों को खाना खिलाना पड़ेगा। हजरत सईद बिन मुसैयिब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैं रमजान का रोजा तोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फरमाया, सदका कर, अल्लाह ताला से माफी मांग, और रोजा की कज़ा अदा कर। यानी कि अल्लाह के रसूल वाज़िह अल्फाज कह दिए कि अल्लाह ताला, यानी कि जब हम रोजा तोड़, यानी कि हमारा रोजा टूट जाता है, तो उस पर अल्लाह के लिए सदका करना है और अल्लाह ताला से माफी मांगना है कि अल्लाह ताला, ये मुझसे गुनाह हो गया है, यानी गुनाह जो सर हमसे हो गया, उससे आप माफी मांगे, तौबा करें, और इसके बदले आप सदका देना है, यानी इसका कफारा आपको लाजमी देना है। कसदन कै करने से रोजा टूट जाता है, इस पर कज़ा वाजिब है। जैसा कि अगर हमारा रोजा टूट जाता है, जैसे कि काई काई वगैरह हो जाती, तो रोजा टूट जाता है, यानी कि लगातार अगर हम पर बार बार अगर खाई वगैरह होते रहती, तो उस वक्त आपका रोजा टूट जाता है और इस पर आपको कज़ा भी करना है। यानी कि जब आप रोजा तोड़ लेंगे, यानी कि आपका रोजा तो टूट जाता है, और आप क्या करते हैं, रोजा टूटने की वजह से वो रोजे की कज़ा नहीं करते, आप गिनती ये बताते हैं कि मैं वो रोजे से थी, लेकिन आपको उस पर कज़ा जरूरी है, वाजिब है, आपको वो कज़ा उसकी करनी पड़ेगी। लेकिन खुद ब खुद खयाने की वजह से रोजा नहीं टूटता, ये बात आप अच्छे से याद रखें कि अगर आपको ऐसी आ रही कि खुद ब खुद आ रही, यानी कि आप निकाल रहे नहीं, वो खुद ब खुद आ रही, तो उस पर रोजा नहीं टूटता। अगर आप निकाल रहे तो
रोजा टूट जाता है और उस पर कज़ा भी वाजिब है। अब रहा मसला हैज और निफास शुरू होने से औरत का रोजा टूट जाता है और उसकी कज़ा है, नमाज की नहीं है। ये बात पिछले किस्त में भी आपको बता चुकी हूँ कि रोजे की कज़ा है, नमाजों की कज़ा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कि यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु यानी कि अल्लाह ताला हमें इतनी आसानी दिया है कि हमें सिर्फ रोजों की कज़ा है, नमाजों की नहीं है। तो अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ऐसा नहीं है कि औरत जब हायजा होती है तो नमाज ना पढ़ सकती, ना रोजा रख सकती, औरतों के दिन में कमी यही वजह से। तो यहाँ पर यही बात बताई गई कि हैज और निफास की वजह से जब रोजा टूट जाता है तो उसको क्या करना है। आप ये सवाल भी करे थे, कोई लास्ट टाइम पे सवाल भी किए थे, तो इस पर आपको रोजे का कज़ा जरूरी है। अगर आपका कौन सा भी वक्त हो, हम ये नहीं देखना है कि आ, जैसे कि अब मगरिब का वक्त है यानी इफ्तार का वक्त है, उससे चंद मिनट पहले भी अगर आपका हैज शुरू हो जाए और निफास शुरू हो जाए तो उस वक्त भी आपको क्या करना है, कज़ा लाजमी करना है, यानी कि वो कज़ा रहनी है, आपको कज़ा करना जरूरी हो जाता है। आपका रोजा तो टूट जाता है लेकिन कज़ा जरूरी हो जाता है। तो हम ये नहीं सोच रहे कि 12 बजे से पहले, हर किसी का ये सोच रहे थे कि 12 बजे से पहले अगर हमारा रोजा टूट जाता तो हम क्या करेंगे, रोजा तोड़ लेंगे, इस पर कज़ा नहीं है, या फिर 12 बजे के बाद रहे तो कज़ा नहीं है। तो ये सब बातें हैं। देखिए असल ये है कि आपका हैज शुरू हो जाए, खलास आपका रोजा टूट जाता है, उस पर वो रोजे की कज़ा आपको लाजमी है, कैसा भी लाजमी। तो ये थे वो काम जो रोजा फासिद हो जाता है और रोजा टूट जाता है। अब देखिए हम ये रोजों के बारे में सुन चुके, अब नफली रोजे, रमजान के रोजे तो हम पढ़ लिए, लेकिन हम नफली रोजों के मुतालिक पढ़ेंगे, जो कि सरसरी पढ़ लेंगे। नफली रोजों की फजीलत के बारे में अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिसने अल्लाह की राह में एक दिन का रोजा रखा, अल्लाह ताला उसे 70 साल की मुसाफत के बराबर जहन्नम की आग से दूर कर देगा। यानी कि 70 साल, सुबहान अल्लाह, 70 साल की मुसाफत के बराबर जहन्नम की आग से दूर करता है। सिर्फ नफली रोजों के बारे में बताया गया है। तो फिर इसके बाद जो रोज़ों की फजीलत बताई गई है वो शव्वाल के 6 रोजे, यानी कि जो रमजान के बाद जिस रोजों के दर्जे है वो आहिस्ता आहिस्ता बताई गई है, इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे। देखिए हर साल के शव्वाल के 6 रोजे रखना सवाब उम्र भर के रोजे रखने के बराबर है। उसका सवाब कितने, उम्र भर रोजे रखने का सवाब है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजान के रोजे रखकर हर साल शव्वाल में 6 रोजे रखे उसे उम्र भर रोजों का सवाब मिलता है। तो साल भर का सवाब मिल रहा है। तो हम ये मौके ना छोड़े कि नफली रोजे इंशाल्लाह रखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो रोजों की अहमियत और फजीलत है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो अयाम बीद है। अयाम बीद यानी चांद की 13, 14 और 15 तारीख को अयाम बीद कहते हैं। रोजे रखे, इससे भी उम्र भर के रोजे रखने का सवाब मिलता है। इसके हदीस अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रमजान से दूसरे रमजान के दरमियान अरसे में हर माह 3 दिन अय्याम बीद के रोजे रखना उम्र भर रोजे रखने के बराबर है, उम्र भर रोजे रखने के बराबर है। तो अय्याम बीद के भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल इस चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते थे कि वो हर महीने की 13, 14, 15 को रोजा रखते थे। वैसे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी, अक्सर अल्लाह के रसूल अक्सरियत अपनी जिंदगी में रोजा ही रखते थे। जब कभी भी नफली रोजे रहते तो अल्लाह के रसूल जब कभी भी मुयस्सर खाना मिलता तो खा लेते और नियत बदल लेते। यानी कि आप जब खाना आपको पेश किया जाता तो आप क्या करते, रोजा तोड़ लेते, नफिल रोजा तोड़ लेते। तो अगर नफिल रोजा अगर है ऐसा आपके पास, यानी कि अगर आप कुछ मुस्तहब, यानी कि अगर आपको कोई चीज दिया गया या फिर खाने की, या फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा मामला होता था कि अल्लाह के रसूल कई दिन से रोजा रहते थे, यानी कि भूख की वजह से, खाना ना रहने की वजह से अल्लाह के रसूल रोजा रहते थे। जब कभी भी उनके पास खाना आता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा नहीं रखते थे।
तो अल्लाह के रसूल की अक्सरियत यानी कि सुन्नत ये थी कि वो रोजा ज्यादा रखा करते थे। तो अल्लाह के रसूल की ये भी एक सुन्नत है जो कि बहुत ज्यादा अल्लाह के रसूल पसंद करते थे, चांद की 13, 14, 15 यानी अय्याम बीत के रोजे रखना। इसकी फजीलत ये है कि उम्र भर रोजे रखने का सवाब मिलता है। सफर में नफली रोजे रखना जायज नहीं है। सफर में नफली रोजे रखना जायज नहीं। हजरत हमजा बिन अमर असलमी रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मैं सफर में रोजा रखूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहो तो रख लो, ना चाहो तो ना रखो। यानी कि हमारी मर्जी, चाहे तो रख सकते हैं, हम पर मुशक्कत ना हो उस हिसाब से रखें। अगर हमें कोई मुशक्कत हो रही है तो हम रोजा ना रखें, अगर आसानी है, सहूलत है, तो हम रोजा रख सकते हैं। उसके बाद जिहाद या हज के सफर में रोजा रखने वाले को अल्लाह ताला 70 साल के मुसाफिर के बराबर जहन्नम से दूर कर देते। जिहाद और हज के सफर के रोजे रखने वाले, यानी कि अगर हम जिहाद के यानी कि अल्लाह के लिए लड़ने के लिए निकले और सफर में हैं, तो अल्लाह ताला 70 साल के मुसाफिर के बराबर जहन्नम से दूर कर देता है उस इंसान को। फिर उसके बाद जो रोजों की फजीलत है वो रोजे है पीर और जुमेरात का रोजा रखना, जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद था। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीर और जुमेरात को लोगों के आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब मेरे आमाल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाए तो मैं उस वक्त रोजे से हूँ। अल्लाह के रसूल चाहते थे कि जब मेरे नाम अमल अल्लाह ताला के पास जाए तो क्या किस हालत में रहे, कि वो रोजे से। तो कितनी खुशनसीबी की बात है जब इंसान के नाम अमल अल्लाह ताला के पास जा रहे तो वो रोजा अल्लाह के लिए रखता है, तो अल्लाह ताला उसको बहुत ज्यादा अपने करीब करता है और अल्लाह ताला बहुत ज्यादा पसंद करता है। तो अल्लाह के रसूल भी क्या करते, पीर और जुमेरात का अक्सर रोजा रखा करते थे। ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है और अल्लाह के रसूल उसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। फिर उनके बाद जिन रोजों की फजीलत है वो है यौम अरफा, यानी 9 जिल हज्जा का रोजा रखना। गुजिश्ता और आइंदा यानी 2 साल के सगीरा गुनाहों का कफारा है, जबकि आशूरे का 10 मुहर्रम का रोजा रखना गुजिश्ता 1 साल के सगीरा गुनाह का कफारा है। इंशाल्लाह इसकी भी तफसील बताऊंगी। पहले हम ये देख लेंगे यौम अरफा का। अबू कतादा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ कि यौम अरफा के रोजे के बदले में अल्लाह ताला एक गुज़िश्ता और यानी कि पिछले और एक आइंदा साल आने वाले गुनाह माफ फरमाएंगे। और यौम आशुरा यानी मुहर्रम यौम आशुरे का रोजा बदले में गुज़िश्ता 1 साल के गुनाह माफ फरमाएंगे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। सिर्फ 10 मुहर्रम का रोजा रखना मकरूह है। अच्छे से याद रखिए ये बात कि एक रोजा रखना मकरूह है, जो कि हदीस के जरिए से बताऊंगी। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजान के अलावा किसी महीने के पूरे रोजे रखते हुए नहीं देखा। अब आपको यहाँ पर शाबान के रोजों की फजीलत बताई गई कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे, यानी कि जिन रोजों के यानी कि रमजान के अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोजों की सबसे ज्यादा फजीलत बताए हैं और रहते थे वो शाबान के हैं। तो हज़रत आयशा कहती है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजान के अलावा किसी महीने के पूरे रोजे रखते नहीं देखा, ना ही शाबान के अलावा किसी महीने में कसरत से रोजे रोजे रखते हुए देखा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर जो रोजे रहते थे शाबान में रहते थे। तो अभी तक हम जो रोजे पढ़े हैं वो है नफली रोजों में शव्वाल के 6 रोजे, जो कि इसकी अहमियत अहमियत के बाद फिर उसके बाद अयाम बीद के, फिर उसके बाद हम जो रोजे की फजीलत पढ़े पीर और जुमेरात, यौम अरफा और 10 मुहर्रम का, फिर उसके बाद शाबान के रोजे। नफली रोजे, अब देखिए नफली रोजे रखने में एक दिन छोड़कर दूसरे दिन रोजा रखने का तरीका सबसे अफजल है। और ये कौन से नबी रहते थे? दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर माह 3 दिन के रोजे रखो, हर माह 3 दिन के रोजे, यानी कि अय्याम बीद। मैंने अर्ज किया, मुझे में इससे ज्यादा ताकत है, तो उन्होंने अल्लाह के रसूल से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल मुझे इससे ज्यादा ताकत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराबर मुझसे रोजे
कम कराते रहे, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दिन रोजा रखो, एक दिन तर्क करो। ये अफजल तरीन रोजे मेरे भाई दाऊद अलैहिस्सलाम का यही तरीका था। बाज लोगों को इतनी ज्यादा यानी कि ताकत रहती है, वो रख सकते हैं, रोजा रखने की उनके पास ताकत होती है। तो वो ये बता रहे हैं कि हर महीने 3 रोजे रखने में बाद लोग थक जा रहे हैं। बाद लोग को ऐसा दिखता है कि ये एक महीने में 3 रोजे रखना कुछ बात मतलब नॉर्मल बात है, हम रह सकते हैं 3 दिन। तो ये तो जिसको आदत है, जो आदी है ज्यादा रोजा रखने की, तो वो दाऊद अलैहिस्सलाम का तरीका है, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत यानी कि हदीस के जरिए से पता है कि मेरे भाई दाऊद का यही तरीका है कि वो अफजल तरीन रोजे है, यानी कि अफजल तरीन रोजा पता है कि एक दिन रोजा रखना है, एक दिन तर्क करना है, एक दिन रोजा रहना है, एक दिन तर्क करना है। अगर आपके पास ताकत है तो आप ये काम कर सकते हैं। तो सहाबा ने भी सवाल किया था अल्लाह के रसूल से कि अल्लाह के रसूल, अगर हम हर महीने 3 रोजा रख ले, उसके अलावा भी अगर हमें ताकत है कि महीने में हम ज्यादातर रोजे रखना चाहे तो क्या करें? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि तुम एक दिन रोजा रखो, एक दिन तर्क कर दो, एक दिन रोजा रखना, एक दिन छोड़ देना। तो ये दाऊद अलैहिस्सलाम का तरीका है, आप ये काम कर सकते हैं। अब देखिए मुहर्रम के महीने में रोजा रखने की फजीलत। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे मुहर्रम के रोजे हैं, जो अल्लाह का महीना है। और फर्द नमाज के बाद सबसे अफजल तहज्जुद की नमाज है। अब महीना और नमाज दोनों की अहमियत को बता दिया गया है। रमजान के अलावा जो सबसे अफजल रोजे रखे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल है, वो मुहर्रम के रोजे, जो अल्लाह का महीना है। यानी कि हर महीने तो अल्लाह ताला के, लेकिन मुहर्रम हरमत वाला महीना। और फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज जो है, 5 तो नमाजें फर्ज कर दी गई है, मुकर्रर है कि हर किसी को फर्ज नमाज में कोई कोताही नहीं करना है। फर्ज तो हर किसी के लिए मुकर्रर, और इस बारे में सवाल भी किया जाएगा, कब्र में हो और कयामत के दिन में उनसे सवाल किया जाएगा। तो फर्ज नमाज के अलावा अगर कोई शौक से जो नमाज पढ़ सकता है, जो जिसको ख्वाहिश है कि वो पाबंदी से पढ़े, तो वो तहज्जुद पढ़े, क्योंकि ये सबसे अफजल नमाज है। और सबसे अफजल महीने के जो रोजे हैं वो कौन से हैं? मुहर्रम के रोजे। फिर उसके बाद देखिए पीर के रोजे की फजीलत के बारे में बताया गया है। अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि पीर के रोजे के बारे में सवाल किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दिन मैं पैदा किया गया था, इसी दिन मुझ पर कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। तो इसकी अहमियत भी ज्यादा है। लोगों का ये तरीका होता है कि पीर के दिन जो रोजा रखते वो कुछ और बताते। तो देखिए पीर के रोजे की, पीर जुमेरात की, तो ये है कि अल्लाह ताला के पास हमारे नाम अमाल पेश किए जाते हैं। उसकी वजह से अल्लाह अल्लाह के रसूल चाहते हैं कि मैं वो रोजे की हालत में हूँ। लेकिन सिर्फ पीर का रोजा रखने की फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हदीस के जरिए से ये बताए कि पीर के दिन मैं पैदा किया गया था, और इसी दिन मुझ पर कुरान नाजिल होना शुरू हुआ था, इसलिए इसकी अहमियत ज्यादा है। इसके अलावा जो रोजों की फजीलत है, जिलहज के पहले 9 रोजे रखना मुस्तहब है। हर माह के कोई 3 रोजे रखना मुस्तहब है। हर माह के पहले यानी कि पीर और पहले दिनों में जुमेरात के रोजे रखना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ज़ौजा मोहतरमा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिलहज से पहले 9 रोजे और यौम आशुरा का रोजा रखा करते थे। हर माह के 3 रोजे रखा करते थे। एक रोजा हर माह के पहले यानी पीर को, और हर माह के पहले 2 जुमेरात को एक एक रोजा अल्लाह के रसूल रखा करते थे। तो देखिए 9 जिलहज की यानी कि जो हम रोजा रहते हैं, देखिए 9 रोजे जो जिलहज के हैं उसकी अहमियत भी ज्यादा है, जो कि अल्लाह के रसूल रखते थे। और उनके अज़वाज मुतहरात ने भी बताया कि अल्लाह के रसूल का मामूल था कि अल्लाह के रसूल ये काम क्या करते थे। तो ये तमाम नफली रोजे हैं, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा। नफली रोजों की नीयत में क्या करना है, जवाल से पहले किसी भी वक्त की जा सकती है। जवाल से पहले किसी भी वक्त की जा सकती, बशर्ते कि कुछ खाया पिया ना हो। हम ये सोचे कि अगर मैं कुछ खाई पी ना हूं और आप नियत कर लेना चाहे कि मैं रोजा रख सकती हूँ, तो रख लेना चाहिए। लेकिन शर्त क्या है कि खाना पीना
ना हो। नफली रोजे की कज़ा वाजिब नहीं है। अगर आप नफली रोजे नहीं रख सकते या फिर आप नियत कर लिए और टूट गया तो उस पर कज़ा वाजिब नहीं है। चाहे तो रख सकते हैं, चाहे ना रख सकते, लेकिन उस पर वाजिब तो नहीं है। और अब हमारी, यानी हमारे हालात के हिसाब से, यानी हम मशक्कत हम पर ना हो, उस हिसाब से हम रोजे रखें। अब देखिए, ये तो नफली रोजों की अहमियत और फजीलत थी कि इतने रोजे नफली रोजे हैं जो कि रहा करते हैं, अक्सरियत लोग रहा करते हैं, और इसकी अहमियत कुरान और हदीस से है। बताया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में इतने रोजे रखे थे। अब वो रोजे जो ममनू है और मकरू है, वो दिन रोजे रखना ममनू करार दिया गया है और मकरू करार किया है। वो रोजे ये है। सबसे पहले तो ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के रोजे रखना मना किया गया। ईद के दिन के रोजे रहना हमें मना किया गया है। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने उमर बिन खत्ताब के साथ नमाज ईद अदा की। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इन दिनों के रोजे रखने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। पहला पहला दिन जब तुम अपने रोजे खत्म करो, दूसरा दिन जब तुम कुर्बानी का गोश्त खाते हो। तो इससे यहाँ पर ये बात मालूम हो गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 2 दिन रोजा रखने से मना करे सहाबा को, और इस चीज से रोके कि ये 2 दिन रोजा रखना मकरूह है और इससे मना किया गया है। और जो रोजा मकरूह है, पहला तो ईद उल फित्र और ईद उल जुहा के रोजे रखना। फिर अब इसके बाद जो रोजे महीने मकरूह यानी कि मना किया गया है, वो है सिर्फ जुमा का रोजा। सिर्फ एक दिन, यानी कि हम उससे पहले उसके बाद नहीं, बल्कि सिर्फ एक सिंगल, जैसे कि एक ही सिर्फ जुमा का रोजा रखना मकरूह करार दिया गया है। अगर कोई शख्स अपने मामूल के मुताबिक जुमा का रोजा रखे तो जायज है। मसलन अगर कोई शख्स हर दूसरे या तीसरे दिन रोजा रखने का आदी है और किसी दिन जुमा का रोजा आ जाता है, तो वो जायज है कि वो रख सकता है। अगर वो खास एक ही दिन, यानी कि जैसा कि जुमा का ही रहता है, तो वैसा रोजा रखना दुरुस्त नहीं है, मकरूह हो जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा की रात, जुमा यानी कि जुमा और जुमेरात के दरमियान वाली रात को क़यामुल लैल के लिए मुकर्रर ना करो, और ना ही जुमा के दिन रोजे के लिए मखसूस करो। हाँ, अगर कोई शख्स रोजा रखने का आदी हो और इसमें जुमा आ जाए तो फिर जायज है। यानी कि हम ये सोचे कि इसको हर दिन नेक अमाल, जैसे कि हर दिन क़याम करने की, महीने के हर दिन क़याम करने की या हर दिन रोजा रखने की आदत है, तो वो रोजा रख सकता है। अगर वो आदी नहीं है, खास तौर पर जुमा है, जुमा आ रहा है, ईद उल मोमिनीन है, उस दिन वो खास रात को क़याम कर रहा है, ठहर ठहर कर दुआएं और नमाजें पढ़ रहा है, फिर उसके अलावा वो खास जुमा के दिन का रोजा रख रहा है, तो वो जायज नहीं है, वो रोजा मकरूह है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त मना करे ऐसे रोजा रखने से। कोई आदमी सिर्फ जुमा का रोजा ना रखे, अगर रखना चाहे तो एक दिन पहले या पिछले साथ मिलाकर रहना चाहिए। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। तो पिछले या फिर आइंदा मिलाकर रहना है, सिंगल सिर्फ एक जुमा का रोजा हम नहीं रह सकते, ये मकरूह रोजा है। तो ईद उल फित्र और ईद उल जुहा, फिर जुमा का रोजा, ये हम 3 पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सौम व विसाल। ये तो आप लोग सुने होंगे। तो वो रोजा है, यानी शाम के वक्त रोजा इफ्तार ना करना और कुछ खाए पिए बगैर अगला रोजा रखना, इसको बोलेंगे सौम व विसाल। तो देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज से मना करें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौम व विसाल से मना फरमाया। तो वो एक आदमी ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आप तो सौम व विसाल रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में मुझ जैसा कौन है? मैं रात को सोता हूँ तो मुझे मेरा रब खिलाता और पिलाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि इस चीज से मना करे कि लगातार कुछ खाए पिए बगैर हम रोजे रखना, इस चीज से अल्लाह के रसूल मना करे। और अक्सर ये लोग जो सिर्फ दुनिया को छोड़कर एक अल्लाह के लिए, यानी कि हम ये चाहते हैं कि हम एक अल्लाह के लिए कमरा बंद करके सिर्फ लिल्लाहियत के लिए, ये जो
रहबानियत इख्तियार करने वाले लोग रहते, ये सौम और विसाल के रोजे रहते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज से मना करे, इस चीज को रोके और बताए कि ये मकरूह रोजे हैं। अब देखिए, इन तीन के बाद जो आता है रमजान के शुरू होने से पहले, यानी कि उसके इस्तकबाल के लिए रोजे रखना, इस चीज से भी अल्लाह के रसूल ने सख्त मना किया गया है। अब उसके हदीस के हवाले से मैं बताऊंगी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान से 1 या 2 दिन पहले कोई आदमी रोजा ना रखे, अलबत्ता वो शख्स जो अपने मामूल के मुताबिक रोजा रखता आ रहा हो तो रह सकता है। यानी कि किसी की आदत रहती कि वो रोजा रहते रहते रहता, यानी कि उसको रमजान करीब आ जाता है तो वो ऐसे में रोजा रख ले। अगर किसी को आदत नहीं है रमजान के इस्तकबाल के लिए, रमजान आ रहा हमें आदत होना है, या फिर रमजान आ रहा हमें देखना है कि हम रोजा रह सकते हैं या नहीं रह सकते, तो वो पहले रोजा रख कर रखता है, देखता है। तो ऐसे रोजा रखना भी मना किया गया है, ममनू है। फिर इसके साथ साथ ये बताया गया कि मुसलसल रोजे रखना भी मना किया गया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, मुझे खबर मिली है कि तुम हमेशा दिन को रोजा रखते हो और रात को क़याम करते हो। मैंने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं ऐसा ही करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा मत करो, रोजा भी रखो और तर्क भी करो, रात को क़याम भी करो, आराम भी करो। तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है, तुम्हारी आंख का तुम पर हक है, तुम्हारी बीवी का तुम पर हक है, तुम्हारे मेहमान का तुम पर हक है। जिसने मुसलसल रोजे रखे उसका कोई रोजा नहीं। तो देखिए, हुकूकुल इबाद जरूरी है। देखिए, अगर हुकूकुल्लाह में कोताही हो गई तो अल्लाह ताला माफ करने वाला है। अगर हुकूकुल इबाद में कोताही हो गई तो अल्लाह ताला माफ नहीं करने वाला है। तो हम अपने ऊपर मशक्कत डालकर हम रोजे रखना या क़याम करना, तो देखिए दिन में तो रोजा रह रहे, फिर दिन के अलावा अगर रात का वक्त है तो रात में भी क़याम करें, यानी कि दोनों वक्त वो अल्लाह के लिए निकाल रहा है, यानी कि पूरा वक्त उसका सिर्फ अल्लाह के लिए निकल रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज से जरा मना करे, ये बताए कि तुम ऐसा ना करें, यानी कि तुम्हारे ऊपर जिस्म का, आंख का, बीवी का, मेहमान का, सबका हक बताया गया, तो तुम इन हक को अदा करो। तुम रोजे भी रखो और उसको तर्क भी करो, यानी कि एक दिन रोजा रहना, एक दिन नहीं रहना, यानी सौम दाऊदी भी हम कर सकते हैं, लेकिन लगातार मुसलसल रोजे रखना, मुसलसल क़याम करना, इस चीज से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करें। उसके बाद अय्याम तशरीक। अय्याम तशरीक, हम ये अल्फाज सुनते रहते हैं, अय्याम तशरीक है क्या? अय्याम तशरीक उसको कहते हैं जिलहज के 3 रोजे, 11, 12, 13 रोजे रखना मना किया गया है। अलबत्ता जो हाजी कुर्बानी ना दे सके तो वो मीना में अय्याम तशरीक के रोजे रख सकता है। तो देखिए, ईद के दिन अब हम बताया गया कि एक दिन ईद का मना किया गया कि ईद उल अजहा। अभी हम पढ़े थे कि पहला ईद उल फित्र और ईद उल जुहा के रोजे रखना मना है, मकरूह है ये रोजे रखना। फिर उसके बाद आपको ये बताया गया कि अय्याम तशरीक, यानी कि अय्याम तशरीक सिर्फ ईद उल अजहा को छोड़कर बाकी के 3 दिन को अय्याम तशरीक कहते हैं, जो कि 11, 12, 13 है। तो इन दिनों में भी रोजा रखने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, क्योंकि ये खाने और पीने के दिन है। अल्लाह के हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा और हज़रत इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुम से रिवायत है कि अय्याम तशरीक में किसी आदमी को रोजा रखने की इजाजत नहीं दी गई, सिवाय उस हाजी के जो कुर्बानी देने की ताकत ना रखता हो। यानी कि हाजियों के लिए कुर्बानी लाजमी होती, वो कुर्बानी करता है, तो अगर वो कुर्बानी ना दे सके तो उसके लिए क्या है कि ये 3 दिन के रोजे रखे। अब उसके अलावा दूसरे लोगों को इजाजत ही नहीं है कि वो अय्याम तशरीक के रोजे रखे, मना किया गया है। फिर उसके बाद जो बताया गया है, हाजी को अरफात में यानी 9 ज़िलहज्जा यानी यौम अरफा का रोजा रखना मना किया गया है। अब देखिए, हम ये कितने कई साल ऐसे गुजर गए जो हम ये काम करते हैं, हमें मालूम ही नहीं कि कौन से रोजे रखना है, कौन से नहीं रखने, कौन से जायज है, कौन से ना जायज है, कौन से मना है, कौन से मकरूह है, हमें मालूम ही नहीं है। अब देखिए, हम ये यौम अरफा का यानी कि 9 ज़िलहज का रोजा रखते हैं, यानी कि इसकी अहमियत और फजीलत, क्या करना है, ये दिन में क्या नहीं करना है, हमें कुछ मालूम ही नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ये चीज का, यानी कि उनसे इल्म हासिल करने का एक शौक था, एक तलब थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो सहाबा क्या करते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार दरियाफ्त करते और पूछते कि अल्लाह के रसूल, ये इसकी क्या फजीलत, इसकी क्या अहमियत है। तो देखिए, एक मरतबा मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है
کہ لوگوں نے عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں شک کیا، یعنی کہ عرفہ کا روزہ تو منع کیا گیا ہے لیکن اللہ کے رسول نے عرفہ کا روزہ رکھا، یہ لوگوں کو شک تھا، تو انہوں نے یعنی کہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا بھیجا؟ دودھ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے دودھ پیا۔ اس وقت آپ میدان عرفات میں موقوف کھڑے تھے اور لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے۔ تو دیکھیے اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا کہ تمام صحابہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول سب کو منع کریں گے یوم عرفہ کا روزہ نہ رکھے، تو سب کو یہ ڈر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کا روزہ ہے یا نہیں ہے، تو اس چیز میں لوگ کو شک تھا، تو کیا کرے میمونہ رضی اللہ عنہ کہ دودھ کا پیالہ بھیجے، دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہے یا نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ پی لیے کہ اللہ کے رسول روزہ نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے نصف شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ نصف شعبان، آدھا شعبان گزر گیا، آدھا یعنی 15 شعبان گزر گیا، اس کے بعد ہمیں روزے رکھنا منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان باقی رہ جائے یعنی رمضان سے 15 دن پہلے تو کوئی نفلی روزے نہ رکھو، کہ ہر کسی کے لیے بتایا گیا کہ نفلی روزے بھی نہ رکھنا ہے شعبان میں، 15 تک آپ یعنی کہ 15 دن جو ہے اس کے بعد نہیں رکھ سکتے، 15 دن تک آپ کو رکھنے کی اجازت دی گئی، تو نصف شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے جو بتایا گیا جس چیز سے منع کیا گیا ہے، عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر سوائے رمضان کے روزے کے نفلی روزے نہ رکھنا، اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہیں رکھنا چاہیے، فرض روزے رکھ سکتی ہیں۔ اب ہمارے پاس میں آپ کو بتائیں کہ محرم کی روزے جو کہ منع کیے گئے، مکروہ کیے گئے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے۔ صرف عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، صرف ایک دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ 9 اور 10 محرم کا یا 10 اور 11 محرم 2 دن کے روزے رکھنا چاہیے۔ حدیث پڑھیں گے ہم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں نے بھی رکھنے کا حکم دیا، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود 10 محرم کا روزہ رکھا اور بتائے کہ لوگوں کو بھی اس چیز کا، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ 10 محرم تو یہود اور نصارہ کے نزدیک بہت عظمت کا دن ہے، یعنی کہ ان کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آئندہ سال ہم انشاءاللہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا چکے ہیں کہ 9 محرم کا جو روزہ ہے، میری 10 محرم کا روزہ ہے تو 9 10 رکھنا چاہیے یا 10 11 رکھنا چاہیے، صرف ایک 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ جتنے روزے تھے مکروہات تھے۔ اب آخر جو مکروہات میں بتایا گیا، جو مکروہ روزے جو منع کیے گئے وہ ہے صرف ہفتے کے دن کا روزہ، ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ قرار دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ اپنی بہن سلمہ سے روایت کرتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتے کا روزہ سوائے فرض روزے کے نہ رکھو، اگر کھانے کو اور کوئی چیز نہ ملی تو انگور کی لکڑی یا کسی درخت کی چھال ہی چبا لو، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سختی سے بتائے کہ اس دن تو بالکل بھی روزہ نہ کرے، یہ یہود اور نصارہ کا دن ہے، ہفتے کا دن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکروہ بتائے کہ اس دن تو آپ بالکل بھی روزہ نہ رکھیں، اس چیز سے اللہ کے رسول سخت منع کرے۔ یہ تک بتا دی کہ اگر کچھ کھانے کے لیے، بعض دیکھیے صحابہ کے پاس اتنی زیادہ مشقت رہتی تھی کہ ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول یہ الفاظ تک بھی بتا دیے اگر ہفتے کا دن آ جائے اور آپ کے گھر میں کھانا موجود نہ ہو اور آپ کو رہنا پڑے ہفتے کے دن کا روزہ تو بھی آپ روزہ نہ رکھیں، یعنی کہ اگر آپ کو انگور کی لکڑی، یعنی کہ اگر انگور کی لکڑی جو اتنی چھوٹی سی پتلی سی باریک سی ہوتی اگر وہ بھی مل جائے اور درخت کی جھال بھی مل جائے تو وہ ہی چبا لو، لیکن ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھو۔ اگر فرض روزوں میں اگر ہفتہ آ جائے تو رہ سکتے ہیں، اگر فرض روزوں میں جیسے مہینے کا پورا ہم رمضان کا مہینہ رہ رہے
तो फर्ज रोजे में आ जाए तो हम रह सकते हैं, लेकिन एक सिर्फ हफ्ते का रोजा रखना मना किया गया है, मकरूह है। तो ये जितने रोजे थे हम जो भी पढ़े मकरूहात थे, यानी मना किए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे एतिकाफ के मसाइल। एतिकाफ सुन्नत मौक़िदा है और किफाया है। इसकी मुद्दत 10 दिन है। कितनी है? 10 दिन। हर मुसलमान को रमजान मुबारक में कम से कम एक मरतबा कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। तो उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए एक हदीस बयान करूंगी जो कि इसकी अहमियत और फजीलत मालूम हो जाएंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हर साल रमजान में एक बार कुरान पढ़ाया जाता। जिस साल आपने वफात पाई आपके सामने 2 बार कुरान मजीद खत्म किया गया। इसी तरह हर साल आप 10 दिन का एहतिकाफ फरमाते, लेकिन जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पाई उस साल 20 यौम का एहतिकाफ फरमाया। तो देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतिकाफ में क्या काम करते थे? तिलावत कुरान, कुरान की तिलावत करते थे। एतिकाफ की फजीलत और अहमियत बता दी कि कितने दिन का है। तो 10 दिन और 20 दिन, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के जरिए से। देखिए एतिकाफ के लिए फजर की नमाज के बाद एतिकाफ की जगह बैठना मसनून है। अब इसके बाद एतिकाफ का बयान जो है उसमें यह बताया गया कि फजर की नमाज के बाद एतिकाफ की जगह पर बैठना मसनून है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतिकाफ बैठने का इरादा फरमाते तो फजर की नमाज पढ़कर मुअत्तिकिफ में दाखिल होते। यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि फजर की नमाज के बाद एतिकाफ बैठे। एतिकाफ करने वाले को बीवी एतिकाफ करने वाले के बीवी मुलाकात के लिए आ सकती है। एतिकाफ करने वाले को बीवी के घर तक छोड़ने की भी इजाजत है, लेकिन मस्जिद के बाहर जाने से मना किया गया है। अगर वो मस्जिद में है, मर्दों को एतिकाफ के लिए मस्जिद में ही करना जरूरी है, मस्जिद लाजमी है एतिकाफ के लिए। देखिए हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ में थे। मैं रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आई और बातें करती रही। वापस जाने के लिए उठी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे छोड़ने के लिए उठ खड़े हो गए। तो यहाँ पर ये बताया गया कि एहतिकाफ में लोग ऐसा समझते कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, वो अपने जरूरी काम भी नहीं करते। तो यहाँ पर ये बता दिया गया कि अगर आपसे कोई मुलाकात के लिए आया है तो आप उनसे मिल सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं, मस्जिद के दरवाजे तक उनको छोड़ सकते हैं। मर्दों को लाजमी है कि मस्जिद में ही एतिकाफ करना। रमजान में एतिकाफ के लिए रोजा रखना जरूरी है। बाज लोगों का ये होता है कि लड़के जो होते हैं वो अक्सर ये रहते हैं कि मस्जिद तो शौक से वो चले जाते हैं, एतिकाफ तो रख लेते लेकिन रोजे नहीं रहते। तो रोजा शर्त है, रोजा रखना एक उनके लिए जरूरी है एतिकाफ के लिए। अब हम इतना बड़ा अमल करें, इतना नेक काम करें, लेकिन हम रोजा फर्ज छोड़ दे रहे तो काबिल कबूल नहीं है। तो ये काम के लिए एतिकाफ जरूरी है और रोजा भी जरूरी है। फिर हालत एतिकाफ में बीमार पुरसी के लिए जाना, जनाजे में शरीक होना, बीवी से मुजामत करना और बगैर तकाज़ुन के, यानी कि इन तमाम कामों के एतिकाफ से जगह यानी बाहर जाना मना किया गया है। यानी कि अगर किसी यानी कि बीमार है, अगर उनकी बीमार पुरसी के लिए आपको निकलना है तो नहीं जाना चाहिए। अगर जनाजे में शरीक होना है तो भी नहीं जा सकते। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एतिकाफ करने वाले के लिए सुन्नत ये है कि वो बीमार पुरसी को ना जाए, जनाजे में शरीक ना हो, बीवी को ना छुए और ना उनसे मुजामत करे। एतिकाफ की जगह से ऐसे जरूरी काम यानी कि क़ज़ाए हाजत है, फर्ज गुस्ल वगैरह है तो निकल सकते हैं। जिसके बगैर चारा ही ना हो तो उस वक्त की बात है। एतिकाफ रोजे के साथ ही होता है और जामा मस्जिद, यानी कि यहाँ पर ये बता दिया गया है कि एतिकाफ के लिए रोजा शर्त है, रोजा रहना कैसा भी लाजमी है। अगर हम रोजा ना रहे, एतिकाफ रहे तो ये काम नहीं करना है, रोजा भी रखना है और इन तमाम काम से रुकना है। और अल्लाह के रसूल की सुन्नत है ये कि अल्लाह के रसूल ये चीजों से परहेज करते, रुकते, यानी एतिकाफ में होते तो इन तमाम चीजों से रुक जाते। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के आखिरी अशरा
21 से 30 रमजान तक एतिकाफ फरमाते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अज़वाज मुतहरात ने भी एतिकाफ किया। तो ये अमल देखकर अज़वाज मुतहरात ने भी ये काम किया है, तो एतिकाफ रख सकते हैं। अगर किसी को एतिकाफ के लिए 10 दिन मयसर ना आए, यानी कि अगर वो 10 दिन उनको ना मिले, तो जितने दिन चाहे वो रह सकते हैं। इतने दिनों ही उनके लिए काफी हो जाते हैं एतिकाफ के लिए। हत्ता कि एक रात का भी एतिकाफ दुरुस्त है। यानी कि अब लोग ये कहते हैं कि 10 दिन, अब आप शुरू में कि ये बताते कि हम तो सुने थे कि 10 दिन है, 20 दिन है। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको चंद दिन भी मिले या एक दिन भी एतिकाफ के लिए मिला, तो आप रह सकते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा रिवायत करते कि हज़रत उमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैंने जमाने जाहिलियत में मस्जिद हराम में एक रात एतिकाफ की नजर मानी थी, पूरी करूं या ना करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी नजर पूरी करो। तो आप ये काम कर सकते हैं। एक एतिकाफ में अगर आपको 10 दिन या फिर उससे कम दिन भी मिले, तो आप रोज एतिकाफ रह सकते हैं, गिनती जरूरी नहीं। अब देखिए, एतिकाफ जब हम रमजान के रोजा रखते हैं, एतिकाफ पाते हैं, तरावी नमाज इबादतें हम तमाम काम करें, लेकिन एतिकाफ में सबसे अफजल जो चीज है वो हमारी खुश नसीबी है। वो रात को तलाश करना हमारे लिए बेहद जरूरी है, जो कि हजारों साल, अब हदीस के जरिए से पढ़ेंगे, कुरान की आयत के जरिए से हम उसको समझेंगे। लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र की फजीलत, लैलतुल कद्र में इबादत गुज़िश्ता गुनाहों की मगफिरत का बाइस है, यानी कि उसकी गुज़िश्ता गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लैलतुल कद्र में ईमान के साथ सवाब की नीयत से क़याम किया, उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अब देखिए, लैलतुल कद्र की सआदत, यानी कि इतने खुश नसीब, यानी कि इतना बेहतरीन अमल से बदनसीब ही महरूम रह सकता है। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते कि रमजान आया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो महीना तुम पर आने वाला है, सहाबा को नसीहत वाले अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में समझाते, महीने की अजमत बताते, महीने की फजीलत बताते, और उस रात की अहमियत और फजीलत बताते जो महीने में कुरान, इनके जो रात में कुरान नाजिल किया गया। तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु गौर से समाअत करते। तो देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, ये जो महीना तुम पर आया है, इसमें एक ऐसी रात है जो कद्र व मंजिलत के एतबार से हजारों महीनों से बेहतर है। हजारों महीनों, हम हजारों साल जीते नहीं है, लेकिन हमको हजारों साल का सवाब मिल जा रहा है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला देखिए हमारे लिए एक ऑफर रखा, वो एक रात हम अगर हमें मिल जाए, तो हमें हजारों साल इबादत का सवाब मिल रहा है। तो एक रात ऐसी है जो कद्र व मंजिलत के एतबार से हजारों महीनों से बेहतर है। जो सआदत, यानी कि खुश नसीब है, सिर्फ उन्हीं को मिल सकती है लैलतुल कद्र। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इसकी सआदत हासिल करने से महरूम रहे, वो हर भलाई से महरूम रहा। और ये भी बता दिया कि लैलतुल कद्र की सआदत सिर्फ नसीब वालों को ही मिलती, बदनसीब उससे महरूम ही रहता है। हम देखिए कितने नाजायज काम करते हैं, लग़वियात। हमें उस रात में तो ऐसा हमारा माहौल होता है कि लैलतुल कद्र आया, रात जागने की है, हम उसमें बेहुदा बात, फहश बात, ड्रामे, उसी तरीके से ऐसे ऐसे काम, जो गेम्स वगैरह ऐसी चीजें करते हैं, बहुत बहुत बुरे काम करते हैं। वो रात की अहमियत और फजीलत का अंदाजा लगा ही नहीं सकते। हजारों साल उस दिन फरिश्ते फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं और क्या करते हैं, आपस में मुसाफा करते हैं, दुआएं करते हैं, खैर व भलाई के लिए दुआएं करते हैं। हम वो रात ऐसे ही बर्बाद कर देते, हम ऐसे ही जाया कर देते। हमें हमें रातों की फजीलत है, ना दिन की, ना रोजों की, किसी चीज की फजीलत नहीं, लेकिन हम मुसलमान हैं। सिर्फ इस्लाम इस्लाम में दाखिल हो गए, लेकिन इस्लाम की अहमियत का अंदाजा नहीं। हम उनसे पूछे, उनसे अंदाजा लगाए जो इस्लाम कबूल करे, मशक्कतों से जो इस्लाम कबूल करे, उनसे पूछे कि इस्लाम क्या है, कैसा मजहब है। वो सुनाते हैं हमारे मजहब के बारे में। तो देखिए, वो रात की अहमियत यानी कि उसकी अहमियत और फजीलत के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि बदनसीब ही उससे महरूम रह सकता है, खुश नसीब है जो उस रात को पा लिया। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब बताया कि वो रात को किन दिनों में तलाश करना है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के आखिरी अशरे 10 दिन की ताक रातों में लैलतुल कद्र की
तलाश करो। यानी कि लैलतुल कद्र अगर आपको तलाश करना है तो आखिरी अशरा यानी 10 दिनों में तलाश करना है, वो भी ताक रातों में, एक रात नहीं, एक रात। और सबसे ज्यादा हमें इबादत उसी रात ही करना है, उस अशरे में ही करना है। मशक जितना हो सके हमें काम करना है, जितना हो सके उतनी इबादत करना है। क्योंकि क्या मालूम, अब ये लोगों का हम, मैं अक्सर यही अल्फाज सुनती हूँ कि हाँ ये रात तो मिल गई, फिर इसके बाद लोग ये बोलते हैं कि हाँ हर साल आता। देखिए रमजान तो हर साल आने वाला है, लैलतुल कद्र तो हर साल आने वाली, इंसान ने रहने वाला है। इंसान के मौत का भरोसा नहीं है किसको नसीब हो या ना हो। तो हमें हर वक्त को आखिरी वक्त समझना है कि मैं जो नमाज पढ़ी, क्या मालूम ये मेरी आखिरी नमाज है। अगर आप इबादत करें या फिर आप ऐसा काम करें जैसे कि आप नफिल इबादत करें और इसी तरीके से लैलतुल कद्र वाली रात है, रमजान है, तो आप ये सोचिए कि ये मेरी आखिरी है। आप तो उस वक्त आप सोच सकते कि आप उस वक्त अंदाजा लगा सकते कि आपकी मेहनत कितनी बढ़ जाएगी। आप खुद इतनी मशक्कत करेंगे इबादत के लिए कि ये मुझे कैसा भी करना है, मैं ये इबादत करूंगी, अल्लाह ताला से मैं इन रातों में लैलतुल कद्र तलाश करूंगी और रो रो कर दुआएं करूंगी और माफी मांगूंगी। तो हमें ये काम करना चाहिए। रमजान के आखिरी अशरे में अहल व अयाल की इबादत के लिए खुसूसी तरगीब दिलाना मसनून है। अब देखिए रमजान में तो हम शुरू से एक महीना, लोग घर वालों का ये अंदाजा होता, हम हर किसी से ये सुनते, अम्मा एक महीना रोजा है, चलो ऐसे ही नॉर्मल रोजे रहते हैं, अपना खाना पीना, गीबत, दूसरे घर के घरेलू काम, फहश लिटरेचर, फिर उसी तरीके से वो ड्रामे सीरियल बातें गीबतें, ये तमाम काम होते हैं। लेकिन आखिरी अशरा आता है तो हम अपने घर वालों को ये बताएं कि ये खुसूसी ये 10 रातें हमारे लिए नाजिल की गई। कुरान किसके लिए नाजिल गया है? दूसरी मखलूकात के लिए नहीं, हम इंसानों के लिए, अशरफुल मखलूकात के लिए नाजिल किया गया। तो हम इंसानों के लिए, खास तौर पर मुसलमान, हम पढ़ें, गौर करें, तफक्कुर करें, जब हम कामयाबी को पहुंच सकते। तो जब कुरान ये रात में नाजिल हुई, तो क्या हम इबादतों में कोताही करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो उस रात हम अल्लाह ताला से दुआएं करें और खास तौर पर घर वालों को तवज्जो दिलाएं कि हम इस रात खुसूसी तौर पर इबादत करेंगे, खास हम सब मिलकर इबादत करेंगे, ये चीज की तरगीब दिलाएं। और ये मसनून तरीका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को इबादत के लिए एक साथ ले जाते, चाहे वो नमाज के लिए हो या फिर कोई काम के लिए हो। तो यहाँ पर देखिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती कि रमजान के आखिरी अशरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी दिनों की निस्बत इबादत में ज्यादा कोशिश फरमाते और हमें कहते, यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा कोशिश भी करते दूसरे यानी कि दूसरे जो रोजे रहे उसके मुकाबले में, और हमें तरगीब भी दिलाते। जब रमजान के आखिरी 10 दिन शुरू होते तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते, रातों को जागते, अपने अहलो अयाल को भी जगाते। देखिए रोजा रहने की वजह, इबादत और तरावी करने की वजह से हम थक जाते, तो उस वजह से, थकने की वजह से क्या करते, तो रोक दे दे। तो हमें क्या करना है, उस रात हमारे घर वालों को जगाना है और उससे हमें बताना है कि इस रात की अहमियत और फजीलत क्या है। फिर इसके बाद, और इस रात में देखिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती है कि "ए अल्लाह के रसूल, अगर मुझे इस रात मिल गई तो मैं क्या दुआ करूं?" तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए या अल्लाह, तू माफ करने वाला है, माफ करना पसंद करता है, लिहाजा तो मुझे माफ फरमा। तो इसकी अहमियत और फजीलत बताई गई है। तो आप रोजों के बारे में, यानी कि जितना आप पढ़ चुके हैं, इंशाल्लाह उसी के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा और उसी के मुतालिक पूछा जाएगा। तो ये आप नफिल रोजे, मकरूह रोजे और इसी तरीके से रमजान के रोजों की अहमियत और फजीलत, ये तमाम चीजों का आपको ख्याल रखना है और इस चीज को नोट करना है। आपसे इंशाल्लाह एग्जाम के वक्त पूछा जाएगा, इससे सवाल किया जाएगा। तो आप ये तमाम चीजों का ख्याल रखें।